Good morning, students. Welcome to accountancy class. In our previous lecture, we have taken chapter accounting ratio. Under this chapter, in the previous lecture, we discussed two types of ratio. One was liquidity ratio, another was solvency ratio. Today, we are going to take up the next type of ratio, that is profitability ratio. So let's start with it. The topics for the day are meaning of profitability ratio, we will be discussing. Then types of profitability ratio. So there are 5 types of profitability ratio in our syllabus. It's number 1, gross profit ratio, then net profit ratio, operating profit ratio, operating ratio, and return on investment. And simultaneously, we will be having certain numericals to understand these ratios. First of all, we will discuss the meaning of profitability ratio. What is profitability ratio? All those accounting ratio measuring the profitability of any business, those ratios are known as profitability ratio. Profitability refers to the financial performance of the business, and the result of these ratios are expressed in percentage. Like in our previous video, we told you कि जो solvency ratios होती हैं हम times में बताते हैं, fractions में बताते हैं, लेकिन जो हमारी profitability ratios हैं इनको हम percentage में depict करते हैं. So we'll start up with first of all gross profit ratio. So gross profit ratio is a ratio that shows the relationship between gross profit and revenue from operation. Higher the ratio is better as it leaves higher margin to meet the operating expenses. जितनी ज़्यादा ये रेशियो होती है उतना ही ये अच्छी होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो बाकी का मार्जिन है वो काफ़ी है. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं. लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे और खर्चे होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, मतलब हमारे पास ज्यादा मार्जिन है अपनी दूसरे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए. तो दैट्स व्हाई जितनी हायर ये रेशियो आती है उतना अच्छा है. सो सी इट्स फॉर्मूला. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. अब इसका जो न्यूमरेटर है ग्रॉस प्रॉफिट, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर हम सेल्स में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन एंड दिस रेशियो इज इजी टू कैलकुलेट. Let's understand it with the help of one example. Now see, in this question, they have asked us to calculate gross profit ratio. And 2 years are given. One is 2019 and another is 2020. So the figure of revenue from operation and gross profit is given. So सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है उसका फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे फॉर्मूले के नंबर होते हैं. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉर्मूला. इससे एक और हेल्प मिलती है कि हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए क्या कैलकुलेट करना है. सो द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. तो हम 2 साल हैं, दोनों साल के लिए अलग अलग निकालेंगे. पहले हम 2019 के लिए निकालेंगे. As the numerator and denominator both figures are given, so it's quite easy to calculate. Similarly for 2020. I hope this is clear. Let's take up another example. Here the gross profit, again they have asked us to calculate. Here revenue from operation means denominator is given.
बट ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट इट. तो हाउ वी विल कैलकुलेट? सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है और वो किसी पे बेस्ड होती है तो हम उसे 100 मानते हैं. अगर 25% ऑन सेल लिखा होता तो हम सेल को 100 बोलते. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25. तो कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो व्हाट विल बी सेल? सेल्स विल बी 125, राइट? तो इससे क्या होगा? हमें अब हमने देखना हमको सेल्स दे रखी है, तो दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट कॉस्ट. हाउ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो रेवेन्यू की रेशियो से डिवाइड करेंगे. अगर कॉस्ट दिया होता तो कॉस्ट की रेशियो से डिवाइड करते. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल की रेशियो है 125, उससे डिवाइड करेंगे और निकालना हमने क्या है? कॉस्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट की रेशियो. तो इन दिस वे वी विल डिवाइड एंड हमारा आंसर आ गया रुपीज 4,80,000. आफ्टर दैट हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाल लिया है एंड इट कम्स रुपीज 1,20,000. नाउ आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. अगेन फॉर्मूले में इसे पुट अप करेंगे एंड विल गेट द आंसर. The next ratio that we are going to talk about is a net profit ratio. Net profit ratio, it is an indicator of overall efficiency of the business. Again, higher the net profit, better the business is. ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी हायर साइड पे आती है उतना ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है. तो लेट्स सी इस फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज वेरी इजी टू लर्न. नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट इज द न्यूमरेटर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ क्वेश्चन कम, हाउ वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? तो इसका फॉर्मूला देखिए. नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स. फॉर्मूला बहुत बड़ा सा लग रहा है, पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ सेल्स. सबसे पहले सेल्स में से हम क्या माइनस करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसका मतलब जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देने आपने, वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, और जितनी भी इनकम अदर देन इनकम आपको मिली है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो ऐड कर दीजिए, टैक्स माइनस कर दीजिए. तो जो लास्ट फिगर आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट. तो हम इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट वो वैल्यू है जिसमें से सारे डिडक्शन हो चुके हैं, जिसमें सारी इनकम ऐड हो चुकी है. लेट्स टेक अप इट्स एग्जांपल. सो इन दिस क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट निकालना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो दिस इज आवर डिनोमिनेटर. बेटा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, सैलरीज वेजेस दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट दे रखा है, इनकम दे रखा है. अब क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100. अब हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंस प्लस अदर इनकम. अब क्वेश्चन में से देखिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिया? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट आता, और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो इसका मतलब हमें रेवेन्यू से निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा एक स्टेप कम हो रखा है, हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल देंगे. बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? बिजनेस में जो भी
ऑफिस से और सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, ये तीनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा अगर कोई इनकम बिजनेस ने कमाई है जो कि रेंट है, उसे हम प्लस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया एंड विल सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास ₹2 लाख। सो revenue from operation is given, and in this way we are able to calculate net profit ratio. The next ratio we have operating profit ratio. The objective of computing the ratio is to determine operational profitability of the business. बेटा एक टर्म होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो बिजनेस को सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग माइनस करने के बाद मिले हैं। एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये इंडिकेट करती है कि बिजनेस को अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है। सो अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब बिजनेस की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। सो इन्हें समझिएगा, ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर है, उसमें अगर कोई भी ऑपरेटिंग इनकम आपको मालूम है वो ऐड कर दीजिए, और यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं ऑपरेशन के ही, दूसरे कोई खर्चे नहीं, तो वो माइनस कर दीजिए। तो दिस इज द वन फॉर्मूला। इफ इट इज नॉट देयर, हमारे पास नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होता है जो लास्ट में आता है। तो इसमें से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने प्लस कर देने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपने माइनस कर देना है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेशन की चीजें ये इसमें एडजस्ट नहीं होनी चाहिए। द थर्ड फॉर्मूला इज आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी उसी के बेस पे वी नीड टू सिलेक्ट आवर फॉर्मूला। तो लेट्स टेक अप द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस रेशियो को समझने के लिए हम 3 केसेस लेते हैं। सबसे पहला जो केस है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला, मैंने कहा कि जब भी हम क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखें कि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। केस नंबर 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिवन है। तो इसका मतलब दिस इज द सिंपल केस। तो इसमें दोनों चीजें गिवन है, तो हमें कुछ ज्यादा फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो केस नंबर 1 की बोथ आइटम्स आर गिवन, विल पुट इनटू द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। इन केस नंबर 2 हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके चलूंगी। इसमें एक फॉर्मूला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका मतलब कि हम जो थर्ड फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें दे रखी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो सेकेंड केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। सो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 80,000। डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी गिवन था, will put into the formula and get the result. थर्ड केस में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, डिनोमिनेटर इज गिवन, बट हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो थर्ड केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% हमें दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 36,000 दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। बेटा जो सबसे पहली रेशियो हमने डिस्कस की है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे।
उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखिए हम नीचे से सॉल्व कर रहे हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 1,08,000 आ गया। एंड आफ्टर दैट we'll put into the formula and get the results. The next ratio is operating ratio. Lower operating ratio is better because it leaves higher profit margin to meet non-operating expenses. ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। इससे पहले जो 3 रेशियोज हमने पढ़ी वो उनमें प्रॉफिट को हम चेक कर रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेजर करती है, तो जितनी ये कम होगी उतना ज्यादा मार्जिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए रहता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको निकालने के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू कॉन्सेप्ट। वन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना आता है, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सेकंड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे, ये कौन कौन से हैं? आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, उसमें है पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो अगर ये 3 एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं तो आप इनको एड अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं दिया है, दूसरी जानकारी दी है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो इनको भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही काउंट करते हैं। Next, we'll move to next slide showing return on investment. One more example we will take up first of all. Revenue from operation given है, gross profit given है, operating expenses given है। So operating ratio ही हम उसका second numerical ले रहे हैं। तो again first of all we will write the formula. After the formula, now see operating cost is not given, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि operating cost हम कैसे बना सकते हैं। Again gross profit given है और operating expenses given है। तो अगर हम gross profit ऑपरेटिंग को निकालने के लिए हमें 2 कंपोनेंट चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, दैट इज 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन 40,000, तो इट बिकम 3,40,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैसे निकाला, ये हमने नीचे दिखाया है, और ऑपरेटिंग रेशियो हमने निकाल दी। द नेक्स्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस रेशियो असेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ये रेशियो जो है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब अगर कोई बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट लगा रहा है तो उसके ऊपर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। दिस रेशियो इज very important because every investor before investing their money wanted to confirm कि what is the ROI they will be getting on their investment. So the formula of calculating this ratio is net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100.
कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियोज में आपने पढ़ा है डेप्ट प्लस इक्विटी। एक तो हम अगर लाइबिलिटी साइड से देख रहे हैं तो डेप्ट प्लस इक्विटी देख सकते हैं, टोटल एसेट जैसे हम कहते हैं, लेकिन इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज को आपने नहीं कंसीडर नहीं करना है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड। और अगर हम एसेट साइड से देख रहे हैं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल को ले रहे हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज नहीं लेना है ना, तो करंट लाइबिलिटीज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। Just take an example from the following information calculate return on investment. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमको 6 लाख, 10% डिवेंचर्स हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख है, और टैक्स रेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। तो अगेन मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आऊंगी कि जब आपको किसी चीज में कोई रेशियो की परसेंटेज दे रखी होती है तो हम उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि हमारे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। द नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यूज ले ली हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट की हैं वो देखिए नीचे। सबसे पहले हमें फॉर्मूले में चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, लेकिन हमारे पास गिवन वैल्यू है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आफ्टर टैक्स क्या है हमें नहीं मालूम है, टैक्स रेट कितना है 40% है, इसका मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 लेते हैं और टैक्स रेट 40 लगाते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 60। वंस अगेन ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, टैक्स रेट क्या है 40%, इसका मतलब बिफोर टैक्स अगर प्रॉफिट 100 होगा तो टैक्स कितना लगाया जाएगा 40 लगाया जाएगा। तो 100 एज्यूम कर रहे हैं हम कि टैक्स लगाने से पहले प्रॉफिट 100 हुआ, उस पे हमने 40 टैक्स लगाया, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन हमारे पास बच रहा है वो है 60। सो अब हमको बिफोर टैक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे हम, डिवाइडेड बाय क्या करना है उसको हमने 60 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 10 लाख, क्योंकि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स की रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो निकालना है बिफोर टैक्स उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना है 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख, इसका मतलब 10% 10 लाख का, दैट्स कम 1 लाख। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया 11 lakh. We'll put these values capital employed is given in the question and we'll get the answers. I hope this topic is clear to you, and after that you are expected to solve certain questions. Thank you.